السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی صوتک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو مضبوط کرے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان علماء کرام تشریف ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے ذمہ داروں کو اس پروگرام کو کرنے کی توفیق دی، اور الحمدللہ آج معین مسجد کے باہر یہ پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو میں بلا تاخیر تقاریر کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے فضیلت الشیخ عبد الماجد تیمی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے عنوان گھروں میں بے سکونی کے اسباب ہمارے سامنے اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیخ محترم کی کئی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ شیخ محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج اس محلے میں توحید کا پرچم علی الاعلان بلند ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے چپے چپے میں توحید کا ڈنکا بجا دے اور تمام امت مسلمہ کو توحید کو سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
अहले इल्म ने लिखा है कि जिस घर में तौहीद नहीं वहाँ सुकून नहीं, जिस मोहल्ले में तौहीद नहीं वहाँ सुकून नहीं, जिस मकाम पे तौहीद नहीं वहाँ सुकून नहीं। और मेरा उन्वान आपके सामने ऐसा ही बयान किया गया कि घरों में बेसुकूनी के असबाब, सबब की जमा है असबाब, यानी घरों में बेसुकूनी और बेचैनी का कोई एक सबब नहीं है, कई असबाब हैं। लेकिन हमें ये देखना है और ये पैगाम देना है कि सबसे बड़ा और सबसे वाहिद वो सबब क्या है जो काबिल ज़िक्र हो, जिसे ज़िक्र किया जाए और जिसे थाम लेने के बाद तमाम असबाब अज खुद ही दूर हो जाएं इंशाअल्लाह। कई बार ऐसा होता है कि एक बीमारी की वजह से कई बीमारियां लग जाती हैं, तो डॉक्टर ये तलाश करता है कि इन तमाम बीमारियों की मेन वजह जो बीमारी है वो क्या है, तो उसे दूर करने की कोशिश करता है और उस बीमारी को ठीक करता है ताकि उसकी वजह से जितनी बीमारियां लग गई हैं वो तमाम बीमारियां दूर हो जाएं। तो मैं कोशिश यही करूंगा इंशाअल्लाह कि उन चंद बीमारियों का जिक्र हो जाए जिसकी वजह से हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, हमारा घर तबाह हो रहा है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे मोहल्ले बर्बाद हो रहे हैं। और सबसे ज़रूरी ये बात है कि कोई किसी पे उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को समझाने और बताने के लिए तैयार नहीं है। इसी पे कुछ बातें मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और शहरी व जमीयत ज़िली जमीयात के नुमाइंदगान, अमायदीन, मोहतरम सामीईन, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनों, कुछ उलमाए किराम मेरे सामने नीचे बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ऊपर चले आएँ। अच्छा नहीं लग रहा है भाई, नबी के वारिस हैं आप नीचे नहीं बैठ सकते। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि हम ऊपर रहें और अम्बिया के वारिसीन नीचे बैठे रहें। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, इस दौर में जो उलमा हैं, उलमाए हक़ हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनके इल्म की हिफाजत फरमाए, उनके सेहत की हिफाजत फरमाए और इस उम्मत को उलमाए हक़ की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने सूरह नहल से आयत नंबर 80 की तिलावत की है खुतबे मसनूना के बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून का ज़रिया बनाया है जिसमें तुम सुकून हासिल करते हो। इंसान जिस तरह का घर बनाता है वैसा घर कोई और मखलूक नहीं बनाती, बात मेरी गौर से सुनिएगा। लेकिन किसी और मखलूक के घर में जितना सुकून है वो इंसान के आलीशान घर में नहीं रहा। इंसान जैसा घर बनाता है वैसा घर कोई और मखलूक नहीं बनाती है, लेकिन एक चिड़िया के घोंसले में जो सुकून है वो हमारे महल में नहीं रहा। इसकी वजह हमें तलाश करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को ऐसी समझ अता फरमाई कि वो घर बनाए। इंसान घर बनाता है, उसमें हर तरह की आसाइश, आराइश, ज़ेबाइश अख्तियार करता है। हाल कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, बाथरूम कैसा हो, और ख़ास करके आजकल बड़े बड़े घरों को उलमाए किराम को दिखाया जाता है ताकि इनका भी तकवा बिगड़ जाए। जब कई आलिम तकरीर करने जाते हैं तो बड़े बड़े ज़िम्मेदारान उनको अपने घरों को दिखाने ले जाते हैं, ये गार्डन है, ये बगीचा है, ये बड़ी बिल्डिंग है, और मौलाना बेचारा जो छोटे मोटे घर में रहता है उसकी भी नीयत बिगड़ जाती है। तो हमारे घर ऐसे हैं कि उसमें हद से ज़्यादा सुकून हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बारिश से बचने के लिए, अब्दुल क़य्यूम बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि घरों को इतना पुख्ता भी ना बना लो कि बारिश के बूंदे भी तुम्हें सुनाई ना दें और कभी कभी बारिश के बूंदे अंदर पड़े ताकि तुम्हें अल्लाह याद आए।
तो घर इतने मजबूत हो गए हैं कि ना धूप, ना बारिश, ना हवा, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अच्छे घर में रहने के साथ साथ हमारे अखलाक को भी अच्छा बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। घर अच्छा मिल गया, अल्लाह का शुक्र। हाजा मिन फजल रब्बी। याकूब साहब, एक हिकायत से बात आगे बढ़ा दूं, सुनिएगा। हाजा मिन फजल रब्बी, बड़ी तख्ती घर पे लग गई, बड़ा मकान बन गया। ठंडिक होती है ना, घर बनता है तो ठंडिक होती है। हालांकि इस्लाम में इसका कहीं से कोई सबूत नहीं है। जो घर के ठंडिक में पैसे खर्च होते हैं, अल्लाह ताला उन पैसों से गरीबों की मदद की तौफीक अता फरमाए, मसाजिद में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, मदारिस में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। हाजा मिन फजल रब्बी का बोर्ड लगा है, घर में ठंडिक हो रही है, सारे लोग खा लिए, निकल गए, खाना बच भी गया। रात के 12 बजे एक बूढ़ा आदमी रो रहा है दरवाजे पे। अब घर का बेचारा मालिक निकला, कहा कि भाई खाना तो बच गया है लेकिन आप रो रहे हैं, क्या आपको खाना नहीं मिला? तो उसने कहा कि मैं खाने वाली मखलूक नहीं हूँ। सुनिएगा ज़रा इसे, मैं खाने वाली मखलूक नहीं हूँ, फिर आप हैं कौन? तो कहा कि मैं ये हाजा मिन फजल रब्बी देख के ले रो रहा हूँ। अब और उसे तशवीश हो गई कि हाजा मिन फजल रब्बी देख के क्यों रो रहे हो, ये तो कुरान की आयत है और मैंने बरकत के लिए लगाया, नया मकान बनाया, इतना खर्च किया और मैं अल्लाह के शुक्र के लिए हाजा मिन फजल रब्बी लिख दिया हूं मैं। तो कहा कि ना, मैं ये देख करके ही रो रहा हूं कि तूने हाजा मिन फजल रब्बी कैसे लिखा। कहा कि तुम हो कौन ये तो बताओ। कहा कि तू मेरा चेला है। कहा उसने कि तू मेरा चेला, तुझे सूद खाना मैं सिखाया, तुझे रिश्वत लेना मैं सिखाया, तुझे हराम कमाई करना मैं सिखाया, तुझे लोगों का माल लूटना मैं सिखाया और सारा मेरा हुनर सीख के तू लोगों का माल लूट के घर बनाया और इस पे तूने अल्लाह की तख्ती कैसे लगाई? मैं शैतान हूँ। बुलाओ, क्या बोला वो? मैं शैतान हूँ और मुझे तकलीफ हुई है कि मेरा हुनर सीख के हराम के पैसे से घर बनाया और उस पे हाजा मिन फजल रब्बी कैसे लिख दिया। तो हाजा मिन फजल रब्बी लिख देने से घर में सुकून नहीं आएगा। अगर वो घर हलाल पैसे से बना है, सबसे पहली बुनियाद बता रहा हूँ, घर के बनाने में, चूंकि अल्लाह ने कहा कि घर मैंने तुम्हें दिया है, घर बनाने का हुनर दिया है ताकि तुम अपने घरों में सुकून से रह पाओ, करार से रह पाओ। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये बड़ी बड़ी जितनी इमारतें आप देख रहे हैं, इन घरों में आप जा करके देख लीजिए कि ऊपर से जितने ही ये चमकदार हैं, अंदर मकीन उतने ही फीके पड़े हुए हैं, सुकून नहीं है उन। क्यों? बुनियादी बात यह है, कभी भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें कभी भी घर बनाने का मौका अगर दे तो वो घर हम हलाल पैसे से बनाएं ताकि उसमें सुकून रहे। अब आप कहेंगे कि हलाल पैसे से कैसे? हलाल पैसे से घर कैसे बनता है? अच्छे अच्छे लोग आज बैंक से पैसे लेकर के घर बना रहे हैं। जरा उलमा से जाकर के पूछ लें आप कि जिस बैंक में आप अपने कागजात रख के घर बनवा रहे हैं और उस घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उसकी बुनियाद हराम पैसे से खड़ी है, तो क्या आपको उसमें सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें हलाल पैसों से ही घर बनाने की तौफीक अता फरमाए, चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो। भाई घर छोटा रहे लेकिन उसमें सुकून हो, उसमें इत्मीनान हो, बच्चों की तरबियत हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, घर बड़ा बन गया लेकिन सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है, लेकिन हम उस गड़बड़ी को तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और घर का जो जिम्मेदार है, ये बात आप लिख लें, आप
کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں حرام پیسے لگائے ہیں تو اس میں پرورش پانے والے کسی کو سکون میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات گھر کے تعلق سے، چونکہ پہلی آیت میں نے جو پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں گھر دیے ہیں تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ دوسری بنیادی چیز، گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر اینٹ اور گارے کا نام نہیں ہے، گھر چھت اور باغبانی کا نام نہیں ہے۔ گھر کا مطلب ہوتا ہے جس گھر میں سکون ہو، اطمینان ہو، جس گھر میں توحید کا بول بالا ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوتیں گونجیں، جس گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی ہو، وہ گھر گلزار ہے، وہ گلستاں ہے۔ اور جس گھر کا نگہبان اگر ان چیزوں سے دور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا فالامام الذی علی الناس رائن وهو مسؤول عن رعیتہ والرجل رائن علی اہل بیتہ وهو مسؤول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت اہل بیت زوجها وولدہ وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل رائن علی مال سیدہ وهو مسؤول عنہ الا کلکم رائن وکلکم مسؤول۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا نگہبان گھر کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ جس نے گھر بنایا، جس نے گھر کی بنیاد رکھی اور اس گھر میں اس کے بچوں کی پرورش ہوئی، وہ گھر کا نگہبان اپنے گھر کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تو نے گھر کیسے بنایا اور گھر میں رہنے والوں کی اخلاقی تربیت کیسے کی۔ دونوں سوال ہوں گے۔ تو نے گھر بنایا کہ گھر والوں کو بھی بنایا؟ تم نے وہ گھر بنا دیا جس گھر میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا تھا اس گھر کو بگاڑ دیا۔ اس کو بنایا؟ یہ سوال ہوگا، یہ سوال باپ سے ہوگا۔ سب سے پہلے اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اتنے بڑے عالیشان گھر میں رہنے والی اپنی اولاد کی کیا تربیت دی؟ کیا اسے کتاب و سنت کا یا قرآن و حدیث کا کچھ بھی سبق پڑھایا؟ کیا ان لوگوں کو تو نے نماز پڑھنے کی تلقین کی؟ کیا تو نے اپنے گھر کو نماز سے آباد کیا؟ یہ سوالات پہلے ہوں گے۔ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں، بڑے بڑے ٹائلز کے گھر بنا کر کے اس میں دونوں پیر پہ پیر چڑھا کر کے رہنے والوں، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں یاد رکھ لو، اپنے ذہن میں اس بات کو راسخ رکھ لو کہ جس گھر میں اللہ کی عبادت نہیں، جس گھر میں توحید نہیں، جس گھر میں سنت نہیں، اللہ کی قسم اس گھر میں کبھی سکون پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس گھر کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس گھر کے اختلافات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں آج آپ کو اسی ضمن میں ایک واقعہ سناتا چلوں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس واقعے کو آپ بہت ہی غور سے سنیں اور شاید یہ واقعہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بہت بڑے بنگلے کا مالک، بہت بڑا رئیس، بہت بڑا صنعت کار، یورپ ممالک میں سالوں سال سفر کرنے والا، زندگی میں صرف فلائٹ میں ہی گھومنے والا، ریشم و حریر کا کپڑا پہننے والا، ایک دن 5 اسٹار ہوٹل میں اس کے لان میں گھوم رہا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ واہ احمد میاں، دنیا کی کون سی دولت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟
दुनिया की कौन सी कोठी है जो तुम्हारे पास नहीं है। ठंडी ठंडी हवाएं खा के समंदर की लहरों से बातें करता हुआ जैसे ही रूम में जाता है, होटल के कमरे में जाता है, टेलीफोन की घंटी बजती है। टेलीफोन की घंटी बजती है, घंटी उठाने टेलीफोन उठाता है, उधर से बड़ा भाई नबील होता है फोन पे। सुनिएगा इस वाक़े को। अपनी औलादों की तरबियत नहीं करने वालों, अपने औलादों को बड़े बड़े घरों में रख करके और खुश हो जाने वालों, अपनी औलादों को आज़ाद छोड़ जाने वालों, अच्छी तरह सुनो। जब घंटी बजी, फोन उठाया, भाई नबील बात कर रहा है, भैया जल्दी से आप आ जाओ, भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है, सीरियस है। भाई कहता है फ्लाइट का टिकट लो, लेकर के यूरोप पहुंचो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा देंगे। कहा कि नहीं, इलाज के लायक नहीं है, आप फौरन पहुंचने की कोशिश करो। बहरकैफ अहमद मियां फ्लाइट पकड़ते हैं, एयरपोर्ट पे जब पहुंचते हैं, नबील नाम का बड़ा भाई रिसीव करता है। घर के बजाय भाई कहीं और जा रहा है गाड़ी लेके। भाई ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा कि हॉस्पिटल चल रहे हैं। हॉस्पिटल में गया, कपड़ा हटा करके देखा, बीवी का चेहरा खून से लथपथ है, लाश खून से लथपथ है, आंखों में आंसू आ गए, बीवी मरी पड़ी है। कहा कि ये हालत कैसे हो गई, कैसे हो गई, तुमने कुछ भी नहीं बताया। कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। कहा कि इसके बाद बेटे के पास लेके चलेंगे, वो कहीं मशगूल है, बिजी है, नहीं आ सका। अब इसे इकलौते बेटे का ख्याल सता रहा है। बीवी तो चली गई बेटे से मिलने के लिए, घर के बजाय पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी जा रही है, पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी जा रही है। कहा कि ये रास्ता तो घर का नहीं है, पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हो। पुलिस स्टेशन पे पहुंचने के बाद बेटा लॉकअप में बैठा हुआ है। अब यहाँ से ये कहानी शुरू होती है, यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अपने बच्चों को आज़ाद बड़े घरों में रखने के बाद हम समझ गए कि हमारे बच्चे बड़े सुकून से रह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इस्लाम से करीब करने की हमें तौफीक अता फरमाए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से नज़दीक करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। पुलिस लाकअप में बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे की हालत ठीक नहीं है। ये यहाँ कैसे पहुँचा? बाप बेटा आमने सामने। भाई कहता है तुम ही बात कर लो। बेटा न नज़र उठा रहा है, बाप नज़र मिला रहा है। थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू शुरू हुई। क्या हुआ, कैसे हुआ? पुलिस स्टेशन में मालूम हुआ कि बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया, बेटे ने माँ को मार दिया। पढ़ाई के नाम पे पैसे पूछता रहा, उसे ड्रग्स की आदत लगी थी, हीरोइन पी रहा था। माँ ने पैसे देने से इनकार किया। उसने सबसे पहले कहा कि अगर तू पैसे नहीं देगी तो मैं बाप को फोन करके बोलूंगा कि तेरा किसी गैर मर्द से रिश्ता है। अस्तगफिरुल्लाह। बाप बेटा अपनी माँ से कह रहा है, पाक दामन माँ से कह रहा है। माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ ने थप्पड़ लगाए। बेटा नशे में चूर था, उठाया, गोश्त काटने की चाकू उठाई और माँ पे ताबड़तोड़ वार किए, ताबड़तोड़ वार किए और माँ को फिना के घाट उतार दिया। हमारे बच्चे भी इसी ढर्रे पे जा रहे हैं। रात को बेटा 12 बजे आ रहा है, बाप को पता नहीं। बेटा कहाँ है, बाप को पता नहीं। मस्जिद में बेटा नहीं है, घर में नहीं है, बेटा कहाँ है, बाप को पता नहीं। मैंने यहाँ का माहौल देखा है, बाप एक होटल में सिगरेट पी रहा है, बेटा दूसरे होटल में सिगरेट पी रहा। बाप एक होटल में बैठा है, बेटा दूसरे होटल में बैठा है। अगर हमने अपने बच्चों की खबर नहीं ली, ये बच्चे कल हमें पकड़ेंगे, यहां भी पकड़ेंगे, कयामत में भी पकड़ेंगे, यहां भी पकड़ेंगे, कयामत में भी पकड़ेंगे। बात हो गई बाप बेटे में, नफरत की, हकारत की निगाह डाल के
बाप मुड़ के जा रहा है। बेटे ने आवाज़ लगाई, अब्बा मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरी बात सुन के जाओ, ऐसे कैसे चले जाओगे। ये वाक़या अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब, क्या कहते हैं उसे, सुनहरे हुरूफ, सफ़ा नंबर 83 से लेकर के 93 तक, सफ़ा नंबर 83 से और 93 तक इस वाक़े को लिखा है। बेटा कहता है कि अब्बा तुम तो पूछ लिए ना, मेरी भी बात सुन लो, उसके बाद जाओ। कहा कि मैं तेरे तरफ चेहरा नहीं करूँगा, तुझे जो बोलना है बोल दे। कहा कि आज मैंने जो किया है, मेरी माँ जो मुर्दा घर में पड़ी है और मैं जो यहाँ पड़ा हूँ, इसके ज़िम्मेदार अहमद मियाँ तुम हो। अगर तुमने मेरी सही तरबियत की होती, मेरी सही तालीम व तरबियत की होती, मुझे किताब व सुन्नत से करीब किया होता, मुझे कुरानी तालीम के करीब किया होता, तो आज मैं इस मकाम पे नहीं होता। दकी नामी शहर में, जो काहिरा में एक शहर है, उस मस्जिद में बैठ करके वो अहमद मियाँ आज भी कुरान पढ़ता है और जाने वालों से इस कहानी को सुना करके अपनी बीवी के लिए मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त करता है। और अपनी करोड़ों और अरबों की दौलत को उसने नारकोटिक्स ब्यूरो को दे दिया, नारकोटिक्स ब्यूरो को अपनी करोड़ों दौलत को दे दिया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाप अपनी औलाद के बारे में पूछा जाएगा और हर माँ अपने शौहर के घर के बारे में पूछी जाएगी, हर औरत पूछी जाएगी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैंने इस सिलसिले को ऐसे बनाया है कि घर में सही माहौल बनाने के लिए सबसे पहले काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें अपने घरों में ऐसी औरतों को लाना है, ऐसी लड़कियों को लाना है जो दीनदार हों, वफाशियार हों, बाअखलाक हों, अहले तौहीद से उनका रिश्ता हो, तौहीद व सुन्नत से करीब हों। अगर ऐसी औरतें, मैंने पिछले ही किसी तकरीर में कहा है कि बाप अगर नबी भी हो जाए और माँ सही नहीं है तो औलाद सही नहीं हो सकती है। बाप अगर नबी भी है और माँ अगर सही नहीं है तो उस औलाद की तरबियत कभी नहीं हो सकती। सही माँओं की तायीन करें, सही लड़कियों की तायीन करें। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ज़ोहर में निकाह हुआ, मगरिब में तलाक हो गई। ज़ोहर में निकाह हुआ, मगरिब में तलाक हो गई। पूछा गया क्या बात है, तो बीवी को लड़की को जो फोटो दिखाया गया उसमें लड़के के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, और जब लड़की शादी होके आई तो उस लड़के के चेहरे पे दाढ़ी थी, इसीलिए लड़की ने तलाक दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे मैं कह रहा हूँ, बाबा आदम के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम अंबिया के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम औलिया को मानने वाले तमाम औलिया के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम कुतुब के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम मुर्शदों के चेहरे पे दाढ़ी। अरे बगैर चेहरे, बगैर दाढ़ी वाला कौन अल्लाह का बंदा है जिससे अल्लाह राजी हुआ हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नौजवान भटकता रहा, शादी नहीं हो रही है। मौलाना कहीं शादी लगा दीजिए, मौलाना कहीं बात कर दीजिए, शादी लग गई। शादी लगने से पहले बार बार मौलाना से बात कर रहा, मौलाना कहाँ तो भी एक छोकरी देखो, कहाँ तो भी एक लड़की देखो। लड़की बता दिया, बातचीत हो गई, शाम में मुलाकात हुई, क्या बात, रिश्ता तय हुआ कि नहीं, बात हुई कि नहीं? नहीं मौलाना, रिश्ता कट गा रिश्ता, कई को रेवा, कई को कट गा रिश्ता। क्या हुआ, सुनिए जरा इसे ध्यान से, क्या हुआ, रिश्ता क्यों कट गया? नानी बोले नको,
नानी बोले नक्को, लड़की बराबर नहीं। क्या बात, लड़की अच्छी है ना, सौमो सलात की पाबंद है, नमाजी है, परहेजगार है, सब कुछ है, फिर नानी क्यों बोल डाले नक्को? क्या है आखिर, वजह क्या है? नहीं मौलाना, सब बराबर है, नमाजी भी है, कुरान भी पढ़ती है, सब कुछ है, तहज्जुद गुजार भी है, दांता में गैप है कते, दांता में लड़की के गैप है कते। वो गैप वाली छोकरी घर में आई तो घर की बरकत चल जाती कते। सुने, दांता में गैप है कते। अरे इन जाहिलों को कौन समझाए, ये ऐब नहीं है, दांत में गैप होना ऐब नहीं है, बेनमाजी होना ऐब है, कुरान का न पढ़ना ऐब है, रोजा का ना रखना ऐब है, पर्दे का ना करना ऐब है, दांतों में गैप है। और वो नानी जो कह रही है कि दांतों में गैप है, ऐसी छोकरी घर में बरकत आई तो बरकत नहीं होती, वो नानी के मुंह में एक दांता नहीं है, वो नानी के मुंह में पहले से एक दांता नहीं है। अगर गैप रहने से बरकत खत्म होती है तो पूरे दांता च नहीं, बरकत च नहीं रहना था। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में ऐसी लड़कियों को लाओ, अगर घर अच्छा बना रहे हो, घर पुख्ता बना रहे हो, टाइल्स लगा रहे हो, बगीचा लगा रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, तो उन तमाम को सींचने के लिए एक काम करो जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, इदा अताकुम मन तरज़ौना खुलक़हु व दीनहु फज़व्विजुहु। मैं आपसे आज इस मजमे से एक वादा करा के अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, कि हमारे बच्चों की शादियाँ, ये जो मैं अभी हदीस पढ़ा, ये ना मेरी है ना मेरे अब्बा की है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोले हैं सल्लल्लाहु, आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा बोलें कि मजमा गूंज जाए, सल्लल्लाहु, अल्लाह के नबी की बात मानेंगे इंशाअल्लाह, मानेंगे ना इंशाअल्लाह। आज मैं जो हदीस बयान कर रहा हूँ, इस हदीस को हम हमेशा याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे और आपके इस कायनात के नबी ने कहा, तुम्हारे पास अगर ऐसा रिश्ता आ जाए जो दीनदार और अखलाकमंद हो, दीनदार और अखलाक, इसके दो पहलू मैं आपको बयान करूंगा आज, इसके दोनों पहलू मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं। पहला पहलू, अल्लाह के नबी ने ये कहा, फज़व्विजुहु, अम्र है ये, कर डालो, उसके दौलत की, उसके नौकरी की, उसके पैसे की फिक्र ना करो। अल्लाह ने चाहा, अगर वो गरीब है, नमाजी है, परहेजगार है, तो शादी होने के बाद उसे अल्लाह करोड़पति बना सकता है इंशाअल्लाह। और हमने अपनी ज़िंदगी में ये वाक़यात देखे हैं, हमने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे पैसे वालों को शादी के बाद भिखारी होते देखा है, और बहुत सारे गरीब बच्चों को हमने शादी के बाद ऐसी गाड़ियों में घूमते देखा है, अच्छे घरों में रहते देखा है। चूँकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, पूरी दुनिया की बात गलत हो जाए, लेकिन हमारे नबी की बात कभी गलत नहीं होगी इंशाअल्लाह। हमारे नबी की बात कभी गलत नहीं होगी। पहला पहलू, अल्लाह के नबी ने कहा, अगर घर को सुकून का जरिया बनाना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, बगैर झगड़े लड़ाई के, बगैर इख्तिलाफ के अगर घर में रहना चाहते हो, तो सबसे पहला काम ये करो जो काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अपने घर में नेक बीवियों का दाखिला करो, नेक लड़कियों का दाखिला करो, नेक औरतों का दाखिला करो, और नेक बच्चों से अपने बच्चियों के रिश्ते करो। दोनों बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात।
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے جڑ سے، ان کے ٹہنیوں سے جو پھل نکلے گا وہ بھی نیک ہوگا انشاءاللہ۔ جب نماز پڑھ کے روٹی بنائے گی، سنیے گا، جب نماز پڑھ کے روٹی بنائے گی، درود پڑھ کے روٹی بنائے گی، تہجد پڑھ کے کھانا بنائے گی، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کا ورد کر کے تمہارے کپڑے دھوئے گی، تمہارے گھر میں جھاڑو لگائے گی، تو بتاؤ برکتوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے کہ نہیں کھل جائیں؟ اور یہی ہمارے اسلاف کی مائیں کیا کرتی تھیں، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے روٹی بناتی تھی، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے آٹا گوندتی تھی، چاول چنتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، ان کے گھروں میں محدث پیدا ہو گئے، بڑے بڑے فقیہ پیدا ہو گئے۔ اور آج ہماری مائیں سیریل دیکھ رہی ہے تو آٹا گوندھ رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، چاول چن رہی ہے، ناچ دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، تو اس کے پیٹ سے گانے والے پیدا ہو رہے ہیں، ناچنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ نمازی نہیں رہا، ہمارا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پہلو کہ اپنے بچوں کی شادیاں نیک لڑکیوں سے کرو اور لڑکیوں کی شادیاں نیک لڑکوں سے کرو۔ دوسرا پہلو یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم ایسا الا تفعلوا، اب سنیے گا دوسرا پہلو، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے پہلو کو چھوڑنے کے بعد یہ امت دوسرے پہلو کی بھی گرفتار ہو گئی، پہلے پہلو کو چھوڑ دیا، دوسرے پہلو میں گرفتار ہو گئی، اور آج ہائے 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 کا نعرہ لگا رہی ہے۔ ارے 1450 سال پہلے جو دوا کائنات کے نبی نے بتا دیا، اس دوے کو استعمال کر کے بیماری دور کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوا، آمین کی آواز بھی نہیں آ رہی، منہ بند ہو گئے ہیں، ایک دم کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا ہمارے بچوں کے بارے میں بولنا شروع کر ڈالے نا مولانا انہوں، ہمیشہ نہیں بولتے ہمارے بچوں کو، انہوں بول رہی، ہمیشہ ہمارے بچوں کو نہیں ڈانٹتے، انہوں شروع کرے۔ ہاں یہ بات ہے۔ دوسری دوا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا، اگر تم نیک بیویوں کا انتخاب نہیں کرو گے، نیک لڑکیوں کا انتخاب نہیں کرو گے، دھاگے باندھنے والی کو ڈھونڈو گے، ناریل والی کو ڈھونڈو گے، کھوپرے والی کو ڈھونڈو گے، نیبو والی کو ڈھونڈو گے، باباؤں کے پاس جانے والی کو ڈھونڈو گے، مرد کو کنٹرول کرنے تعویذ دندان لینے گئی کہتے، مرد کو کنٹرول کرنے تعویذ دندان لینے گئی۔ ذرا ایک بابا کی بات یاد آئی، وہ بھی بتا ڈالوں، کیسا انہوں لوٹ رہی عورتوں کو، کیسا بیوقوف بنا رہی عورتوں کو۔ ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دھاگے والوں سے بچ کے رہیے، یہ مور کے پنکھ والے، یہ دھکنے دینے والے، یہ دھواں دینے والے آپ کو فٹس کا مریض بنا دیں گے۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ عود کا دھواں جب ناک میں ڈائریکٹ پہنچتا ہے تو دماغ کے بال سے باریک رگوں میں ہمیشہ کے لیے گھس جاتا، وہ نہیں نکلتا، آگے چل کے ٹیومر ہوگا، آگے چل کے ٹیومر ہوگا، فٹس کی بیماری ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے دروازے پہ اونٹ کا دھواں نہیں دیا مور کا پنکھ لے کے، اور صحابہ کرام نے کسی کے دروازے پہ اونٹ کا دھواں مور کا پنکھ لگا کے نہیں دیا۔ اللہ اس بیماری سے اس امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعویذ دندان لینے گئی کہتے، دندان بولے تو دانت، یہ فارسی لفظ ہے دندان۔ اب وہ تعویذ دینے والا ناپاک نجس اسے لکیرہ مار کو دیا
कहा कि देख जैसा बोलतूं वैसा ज करना, जर्रा भी गड़बड़ करी तावीज़ काम करती नहीं। उन्हें अब दोनों हाथा भनले को हूँ साहब जैसा तुम्हें बोलती वैसा ज करतूं, एक रत्ती भी इधर उधर नहीं करती। अब वो बेचारा देख जब मर्द घर में आता, ये जो पुड़ी दे रहा हूँ, ये जो कागज़ दे रहा हूँ, इसे दांता की दाढ़ में रख को उन्हें आको रोज़ गालियाँ देता कहते, ज़ोर ज़ोर से बातें करता कहते। इन्हें भी जवाबें देती थी, उन्हें मारता था। इन्हें भी जवाबें देती थी, उन्हें मारता था। उन्हें एक बोलिया, इन्हें चार बोलती थी। उसे वो चालाक आदमी को इसकी बात समझ में आ गई। उन्हें बोलिया ये जो पुड़ी दे रहा हूँ इसे दांता के दाढ़ में रख को जोर से दबाना। उन्हें कितने गालियां देता तू उतने जोर से दबाना, उन्हें कितने जोर से बोलता उतने जोर से दबाना। तेरा मुंह खुलना नहीं, देख तेरा मुंह खुलना नहीं, मुंह खुलिया तावीज़ काम करती नहीं। हूँ साहब वही साज करता हूँ बोल को गई। अब मर्द आया, इन्हें दांत में तावीज़ दबाई, उन्हें गालियां दे रहा, इन्हें मुंह घट ऐसा, उन्हें गालियां दे रहा, इन्हें मुंह दबा रही, उन्हें गालियां दे रहा, इन्हें मुंह दबा रही, उन्हें मारने आ रहा, इन्हें मुंह दबा रही। चुप जाको सोगा उन्हें। क्या इसे होगा आज? क्या बोला तो भी मुंह नहीं खोली, क्या बोला तो भी आज मुंह, बड़े बड़े गालियां दी तो भी मुंह नहीं खोली। क्या होगा? सुधर गई इन्हें। दूसरे दिन बाबा के पास पहुंची, क्या काम करी साहब तावीज़ तुम्हारी, क्या काम करी साहब तो तावीज़ तुम्हारी, तुम्हें कैसा बोले वैसा घट दबाई। उन्हें जोर से अड़लाया और घट दबाई, उन्हें मारने आया और घट दबाई। अरे बेहूदी औरत, अरे नादान औरत, बगैर तावीज़ के भी मुंह बंद रखी तो भी क्या भी बोलता नहीं हूं। ये पहले इनके टेक्निका मालूम कर लेती, उसके बाद वैसा यूज करते इनको। मन तअल्लक़ तमीमतन फहुव अशरक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तावीज़ लटकाया, चाहे वो दांत में रखा, कान में रखा और कहाँ की एक रखा, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करता। शिरक किया, ये दवा देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घर में सुकून पैदा करने का जरिया बताया। अगर तुम घर में नेक औरत को नहीं लाओगे, मुवहिदा को नहीं लाओगे, परहेजगार को नहीं लाओगे, इल्ला तफालू, आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकुन फितनतन फिल अर्ज़, तकुन फितनतन फिल अर्ज़। अगर तुम्हारे घर में चाहे घर कितना भी आलीशान हो जाए, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ बैठे रहेंगे बड़े बड़े घरों में रहने वाले, अल्लाह हम सब के घर में सुकून अता फरमाए, सबके घर में अल्लाह ताला तौहीद का बोलबाला करने की तौफीक अता फरमाए, सबके घरों में नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। यानी अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तेरे घर में नेक औरत नहीं आई तो तू घर जितना भी आलीशान बना ले, दुनिया के फितने से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। किसकी बात है ये? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। दुनिया के फितने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तकुन फी फितनतन औ फसादिन आरीस, और तेरे घर में फसाद इतने बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े होंगे, इसलिए कि जिस घर में नमाज न हो वो कब्रिस्तान से भी बदतर है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र न हो, जिस घर में तिलावत न हो, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में नमाज पढ़ो, मुसल्ले बिछाओ, कुरान की तिलावत करो। कल मैंने देखा एक घर पे, एक होटल में आयतल कुर्सी का तोगड़ा लगा है। परसों एक घर में जाने हुआ, कोने में आयतल कुर्सी, सेंटर में चारों कुल और साइड में एक और तख्ता, और घर में उसी कुरान के नीचे, कुरान के तख्ते के नीचे नाच हो रहा है। क्या हो रहा है? सुन रहे हैं आप मेरी बात को? नाच हो रहा है। आप सबके घर में, आप जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं,
इल्ला माशा अल्लाह आप सबके घरों में कुरान के तख्तियां लगी होंगी। लगी हैं कि नहीं लगी है? बोले हाँ या ना। नहीं लगी हैं? सबके घर में कुरान की तख्ती लगी है कि नहीं? और सबके घर में गाने बजते हैं कि नहीं? नाम लिखा, एक होटल में गया, मदीना होटल, कैश के ऊपर आयतल कुर्सी का तोगरा, नीचे बीड़ी मार रहा, इन्हें नीचे बीड़ी मार रहा, और आयतल कुर्सी के तोगरे को बीड़ी मार 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 के काला कर डाला है। बीड़ी पी पी के काला कर डाला है। अब आप कहेंगे कि मदीना होटल नाम क्यों रखा इसने? मदीना होटल नाम रखने का मकसद यह है कि मुसलमानों को बकरा बना के होटल में बुलाना, मदीने के नाम से। आज आप देखिए किसी ऑटो पे आप देखिए कस्बा लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कस्बा। क्या है ये कस्बा? कोई एक आदमी बताए मजमे में से, बताइए किसी का ऑटो कस्बा हो सकता है? किसी का ऑटो कस्बा हो सकता है? नबी की बेहुरमती मुसलमान कर रहा है कि यहूदी कर रहा है? कौन कर रहा है? किसी गाड़ी पे आप देखें बुराक लिखा होता है। क्या है बुराक? ये बताएं एक आदमी कोई। बुराक क्या है? मेराज पे ले जाने वाली सवारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये फाइनेंस के पैसे से, हराम के पैसे से ली हुई गाड़ी के ऊपर बुराक लिखता है। बुराक लिखता है। बताइए नबी की तौहीन कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है कि दूसरे कर रहे हैं? नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे से मतलब नहीं, नबी की सुन्नत से मतलब नहीं। आज मुसलमानों के घर में जो बेचैनी है, जो मायूसी है, कई घरों में जाना होता है, कई घरों में जाना होता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब घर में सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि इस घर में बड़ा सुकून होगा। हज़ारों का सोफ़ा है, टेबल है, तुगरे हैं, आलीशान घर है, लेकिन अंदर जाने के बाद, चेहरे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा मरीज इस बस्ती में कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुसल्ला नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, तौहीद का बोलबाला नहीं है, सुन्नत का बोलबाला नहीं है। बड़ा घर बनाया और ला करके घरों में नींबू मिर्ची लटका दिया। अल्लाह अकबर। जिस घर में नींबू मिर्ची लटके, कहा कि मुलबागल में एक साहब ही, वो मुलबागल कोलार वाला, मुलबागल में एक साहब ही, 100 की भीड़ रहती है, 1 रुपया लेते नहीं। क्या बोलते साहेब? 40 नींबुआ लेके आना, 40 नींबुआ लेके आना। 300 लोग 40 नींबुआ लेके गए तो कितने होते दिन भर में? 300 लोग 40 नींबुआ लेके गए तो कितने होते शाम तक नींबुआ? मालूम हुआ कि हर तीसरे रोज 10 व्हीलर गाड़ी का लोड साहेब का गुजरात जाता है नींबू लेके। हाँ, हर तीसरे दिन साहेब का लारी, अपनी लारी है 10 व्हीलर, और हर तीसरे रोज 30 टन नींबू साहेब का गुजरात जाता है नींबू व्यापारी के यहाँ। साहेब कुछ नहीं लेते, और साहेब 4 खोपरे भी लेती। 40 नींबुआ 4 खोपरे, और वो 4 खोपरे की गाड़ी 1 महीने के बाद राजस्थान जाती है नारियल के व्यापारी के पास। और साहेब के प्लाटा, मुलबागल के पीछे भी प्लाट, सामने भी प्लॉट, आगे भी प्लॉट, फार्म हाउस। साहब कुछ भी नहीं लेते। अरे साहब ने तुमसे नींबू भी लिया, तुम्हारा ईमान भी लिया, तुम्हारा ईमान भी लिया। जिस घर में शिर्क हो, एक घर में गया, कुरान की कुछ आयतें पढ़ करके निकल रहा हूँ। मैं रुकया करता हूँ, बहुत सारे लोगों को शिर्क बिदअत से बचाने के लिए कुछ इलाज कुरानी आयत से करने के लिए लोग बुलाते हैं। अल्लाह ताला शिफा भी देता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक घर में दाखिल हुआ, इतनी बड़ी दाढ़ी रखा है, टोपी रखा है, डींगे मार रहा, मौलाना हम ये सब चीज़ों को नहीं मानते, ये सब चीज़ों को नहीं मानते, इसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते। भूले से ऐसा हुआ भूले से ऐसा हुआ
कि निकलने के टाइम पे दरवाज़ा ज़रा सिरक गया सामने, उन्हें जानबूझ को दरवाज़ा आड़ा कर को रखा था, ज़रा सा मेरे पाँव से लग को दरवाज़ा सिर गया, इतना बड़ा खोपरा हर एक कपड़े में लटका को रखा है, और आधे घंटे से तकरीर कर रहा था कि मैं कुछ नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, पहली चीज़ ये है कि अपने घर में सहीहुल अकीदा औरतों को दाखिल करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, जो सही इल्म वाली हो, सही अकीदे वाली हो। और ये फ़ैसला मेरा नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के मुताबिक हमारे घरों में नेक बीवियाँ, कुछ मत देखिए, कुछ मत देखिए, लड़की वाला गरीब है, मिस्कीन है, अगर उसकी बीवी, उसकी बेटी नेक है, अपने घर का बहू बना लीजिए। दूध बेचने वाली की बेटी को हजरत उमर ने अपना बहू बना लिया था। दूध बेचने वाली की बेटी को हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर की बहू बनाया, इसलिए कि उसकी सरगोशी आपने सुन ली थी कि अम्मा दूध में पानी मिलाना हराम है। माँ ने कहा उमर कहाँ देख रहा है, बेटी ने कहा अम्मा उमर का रब देख रहा है। अल्लाह अकबर। दूसरा मसला अपने घर को सुकून के साथ आगे बढ़ाने के लिए मेरी आखिरी बात है, शायद मेरा वक्त भी हो रहा है। याकूब जामई को आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपके चहेते और आपके महबूब मुकर्रिर वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आखिरी बात ये बता के, चूँकि इस तकरीर की आखिरी बात है ये, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अपने घर में सुकून चाहते हो तो अपने घरों से सदक़े दिया करो, सदक़ात किया करो, सदक़े निकाला करो। 2 फरिश्ते हर आदमी के दरवाजे पे हर दिन नाजिल होते हैं, उतरते हैं। उसमें से एक फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, जो अल्लाह के रास्ते में देता है, उसके दरवाजे पे खड़ा होकर के फरिश्ता उस घर के लिए दुआ करता है, ऐ अल्लाह इसे और बढ़ा दे, इसे और बढ़ा दे, इसकी औलाद को सलामत रख, इसके माल को सलामत रख, इसके इज्जत को सलामत रख। ये कौन दुआ करता है? फरिश्ता दुआ करता है। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा फरिश्ता अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, दूसरा फरिश्ता उसी दरवाजे पे खड़ा होके कहता है ऐ अल्लाह इसे कंगाल बना दे, इसे भिखारी बना दे, इसके घर का सुकून गारत कर दे। ये तेरे राह में नहीं देता है, ये तेरे राह में नहीं खर्च करता है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पहलू हमें बता दिया है। पहला पहलू यह है, अगर घर में सुकून चाहिए नेक औरतों का इंतखाब करें, मुवहिदा को लाएं, बिदाती शिरक करने वाली, और जिस घर में शिरक हो, आज मैं इस मजमे से ये ऐलान करना चाहता हूँ, जिसका ऐलान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जिस घर में शिरक हो उस घर में अल्लाह की रहमत कभी नाजिल नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला इस शिरक जैसे बुरी लत से, बुरी बीमारी से और सबसे बड़े जुल्म से, इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, शिरक से बड़ा कोई जुल्म नहीं है, शिरक से बड़ा कोई अजाब नहीं है। अल्लाह इस शिरक जैसे, परसों में तकरीर किया और मैंने सुना कि कुछ औरतों ने, कुछ मेरी माँ और बहनों ने अपने हाथों से हाँ, तो मैं ये कह रहा था
میں نے آج کی تقریر میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھی ہیں۔ سکون اگر گھر میں چاہیے، اور آپ بالکل میری طرف دیکھیں 2 منٹ تاکہ یہ میری بات آپ کے دل میں ازبر ہو جائے۔ بالکل اس بات کو اپنے دل میں ازبر کر لیجئے، اگر گھر میں سکون چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اولاد کا بگڑنا اس سے بڑا عذاب ایک باپ کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک ماں کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز گھر بنائیں حلال پیسے سے، کہیں انشاءاللہ، کہیں آواز نہیں آ رہی ہے۔ حلال جھوپڑی میں رہ لیں، بھاڑے کے گھر میں رہ لیں، باتیں بہت تھیں، لیکن چونکہ ہمارے ہے نا ہردل عزیز مولانا یعقوب جامی بیٹھے ہیں، میں وقت نہیں لوں گا آپ کا، باتیں بہت ساری پوری لسٹ لے کے آیا تھا لیکن بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ بہرکیف حلال پیسے سے گھر بنائیں، نہیں تو بھاڑے کے گھر میں رہ لیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ، گھر حلال پیسے سے اگر بنا رہے ہیں تو اس گھر میں کوشش کریں کہ بیٹی غریب کی ہو لیکن نیک ہو، انشاءاللہ کہیں آپ۔ آج اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا صلہ اللہ مجھے بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور جہیز جیسی لعنت سے، جہیز اور کیش، ان چیزوں سے دور ہو کر کے کسی غریب کی بیٹی کو اس کے ایمان کی وجہ سے اٹھا لیں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات کہ ہم اپنے گھروں سے صدقہ کریں، اللہ کے نام پہ خیرات کریں، اللہ کے نام پہ دیں، غریبوں کو دیں، جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے ان کو ہم دیں۔ کسی کے ہاں جائیں، شادیوں میں رقے نہ لے کے جائیں، کبھی کبھی اللہ ہمیں اسپتالوں میں جا کر کے ان غریب مریضوں کو بند کور دے کر کے آنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے پاس دوا خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کریں گے تو ہمارے وطنی بھائیوں کو بھی اسلام کو سمجھنے کے لیے اللہ راغب کرے گا انشاءاللہ۔ ان 3 باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں ان باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تعویذ والی باتیں میری ماں اور بہنوں کو سمجھ میں آ گئی ہیں، اس دن بھی میں نے سمجھایا تھا، آج بھی سمجھایا ہوں کہ ان تعویذ گنڈے والوں سے، شرک کے اڈے والوں سے آپ دور رہیں، اور جمعہ کو سلفی مساجد کے طرف رخ کریں اور قرآن و حدیث سے اپنے سینوں کو مزین کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح سنت کیا ہے، اسلام کا صحیح رخ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔